Assalamu alaikum students. Today we are starting May-June 2023 paper 3-2. The starting time is 11:05. Ending time will be, let's see what will be the ending time. Now, start कर रहे हैं जनाब. So, what we have in this question number one. Question number one is about inequality. How to solve this question number one? Squaring both the side. So it will be 5x minus 3 whole square less than 2 3x minus 7 whole square. So it will be by expanding the bracket, it will be a square minus 2ab plus b square less than 2 square is 4. And here I'm expanding the bracket again, a square minus 2ab plus b square. Now 25x square minus 30x plus 9 less than 4 9s are 36x square minus 4 into 42 is 168x plus 196. Now x square को हमें रखना है positive. So it will be 36 minus 25 will be 11x square, then minus 138x plus 187. Here it is 0. X square is always positive. तो x square को इस साइड पर लेकर आइए. Minus 138x plus 187 और inequality का साइन ये हो जाएगा. By using your calculator, find the critical values. And the critical values are 11 and 17 over 11. Therefore, the final answer is x. जो भी साइन लास्ट स्टेप का साइन है वो साइन दोनों तरफ आपने लगाया. Smaller value here and the larger value here. This is question number 1. Now, after that, what we have in question number 2? In question number 2 is the question of log. Question number 2 is the question of log. What we have in this question number 2, we have to find the exact value, giving your answer in exact form. We have to solve the equation and find the value of x in exact form. करते हैं जनाब. log की प्रॉपर्टीज इसमें यूज होंगी. अगर हम अप्लाई करते हैं, the left side is ln 2x squared minus 3 equals to, log से पहले जो 2 है ये पावर में चला जाएगा तो इट विल बी ln x squared, एंड ln x squared minus ln 2 will be ln x squared upon 2. log and log cancel out. 2 cross multiplication, 4x squared minus 6 equals to x squared, and 3x squared equals to 6. X squared equals to 2 and x equals to plus minus under root 2. Now, अगर माइनस अंडर रूट 2 आता है और हम इसमें रखकर चेक करते हैं तो लॉग नेगेटिव आ रहा है, तो इट मींस नेगेटिव लॉग इज नॉट पॉसिबल. सो वी जस्ट हैव टू एक्सेप्ट पॉजिटिव अंडर रूट 2. हमारे पास सिर्फ पॉजिटिव अंडर रूट 2 की वैल्यू आई. होपफुली इट इज. माइनस लिखने का एक मार्क कट जाएगा. नो, एग्जैक्टली यू जस्ट हैव टू राइट पॉजिटिव आंसर. ओके, क्योंकि नेगेटिव आंसर इज नॉट पॉसिबल इन दिस आंसर. ठीक हो गया. Now, question number 3, Argand diagram. Question number 3, Argand diagram. Now, we have to make here the Argand diagram. Now, in this, क्या कहा गया? Modulus equals to 2. Modulus जब भी आएगा हमें क्या करना होगा? Circle बनाना होगा because of 1z. First, calculate the center of the circle. So, equate in the modulus thing with 0. So, z equals to minus 3 plus 2 iota. And the radius of the circle is 2.
So -3 will be somewhere here and 2 will be here. We have to make a circle. We have to make a circle of radius 2. We have to make a circle of radius 2 with this center. So approximately it is this. Here is the center of the circle. Here is the center of the circle. Sketch the locus of point representing complex number z satisfying this. हमने इसको sketch कर दिया, right? Now, अब आप देखिए, in this, after this A part, what we have in the next part, find the least value of modulus of z for the points on the locus giving your answer in exact form. Okay. अब हमें क्या करना है? Z modulus of Z. No. Wait. Exactly. Axis से touch होगा. Yes. Because of the radius 2. Right? This is the correct diagram. This is the correct diagram. Here is the center. Here is the center. Now, अब देखिए आप. Here it is 2. Now, we have to find the least value of Z. Means Z equals to 0. Means from origin, we have to calculate the least value from this locus. So just join these 2 points. Center of the circle. Center of the circle is -3, 2. Origin is 0, 0. The least value is up till here from origin. So find the distance. Let's say this is A and this is origin O. Find the distance OA. OA will be under root y2 minus y1 whole square, x2 minus x1 whole square. So it will be under root 13. Therefore, what will be the least value? The least value will be OA is under root 13 minus the radius of the circle, which is 2. This length is 2. So the least value is under root 13 minus 2. This is the second part of complex numbers. Now, इस वैल्यू circumference पे होती है, origin पे नहीं होती circle. no, exactly. Actually, the locus means circumference of the circle. Origin is nothing, or the center of the circle is nothing. Locus क्या है? Locus is this red line. Okay. Now, after that, question number 4. Question number 4 is about trigonometry. What we have in this question number 4? We have to solve the equation. Equation को solve करना है. इसमें दो अलग अलग एंगल आ गए, एक x एक हाफ x. बड़ी कंफ्यूजन रहती है इसमें. तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले तो हम कहते हैं let t equals to half x. Let t equals to half x. Now we are starting the question. If t is half x, then x will be 2t. So we can say that 2 cos 2t minus cos t equals to 1. After that, I'm using cos 2 theta formula here. So it will be 2 cos square t minus 1 minus cos t equals to 1. So it will be 4 cos square t minus 2 minus cos t equals to 1. So here it will be 4 cos square t minus cos t minus 3 equals to 0. By using your calculator, the two values of cos t are, the first is 1 and the second is minus 3 upon 4. Now we can say that it will be cos half x equals to 1 and cos half x equals to minus 3 upon 4. Cos positive, or when cos is 1, it will be, when cos is 1, it will be 0 and 2 pi. 0 and 2 pi. Cos is 1 at 0. 0 पर क्या होता है? Cos 1 होता है. और 2 pi 360 degrees पर cos क्या होता है? वो 1 होता है. Now, cos is negative. Cos is negative. So in which quadrant we have to go? Second.
cos negative, and third, cos negative. Find the basic angle, cos inverse of 3 upon 4. So it will be cos inverse of 3 upon 4. I'm calculating the basic angle. Calculator must be in radians. So cos inverse of 3 upon 4. 3 upon 4. It is 0.723. 0.723. 0.723. Here it is 0.723. Here it is 0.723. So half x will be the first angle is pi minus 0.723. So pi minus 0.723. The result is 2.41, 2.42, 2.42. And the second angle is pi plus 0.723. So it will be 3.86. 3.86. By this, the value of x will be multiplied by 2, 2.42 multiplied by 2 will be 4.84, and 3.86 multiplied by 2 will be 7.73. 7.73. And for this, x will be 0 and 4 pi. 4 pi को reject कर दिया जाएगा because we have to go up to 2 pi. हमें कहां तक मूव करना है? 2 pi तक हमें मूव करना है. That's why हमने 4 pi को कर दिया है reject. Now, this is question number 4 about trigonometry. 7.73 भी कैंसिल हो जाएगी. 7.73. First, we can check that what is the value of 2 pi. The 2 pi will be what? 6.28. 6.28. So we also have to reject this. We also have to reject this because we have to move in between 0 and 2 pi. So after that, वो वाले कौन से क्वेश्चन होते थे जिनमें हमें रेंज भी चेंज करनी पड़ती थी? double angle question. अच्छा, one more thing here. वो क्वेश्चन डबल एंगल के होते थे ना जिसमें एंगल डिफरेंट होते हैं, राइट? ओके. After that it will be the next question is question number 5. What we have in this question number 5, the complex number 2 plus y iota. The complex number 2 plus y iota is denoted by a, where y is negative, less than 0. It is given that function of a is this. Find a simplified expression for fa in terms of y. ठीक हो गया. हमें क्या कैलकुलेट करना है? We need to calculate f, and what is the value of a? 2 plus y iota equals to, जहां a है वहां पर हम क्या रख देंगे? 2 plus y iota whole cube minus 2 plus y iota whole square minus 2 plus y iota. अब आप देखिए, क्यूबिकल जो आपके पास ये पावर आ गई है, इसको एक्सपेंड करने की नीड नहीं है. आप पहले इसको ऐसे लिख दीजिए, 2 प्लस वाई आयोटा होल स्क्वायर माइन 2 प्लस वाई आयोटा होल स्क्वायर इंटू 2 प्लस वाई आयोटा. और यहां इसको एक्सपेंड कर दीजिए आप, ए स्क्वायर प्लस 2ab plus b square. So it will be minus y square because of iota square is -1. Minus 4 minus 2y iota. अब 2 प्लस वाई आयोटा की जगह पर इसका एक्सपेंशन रख दीजिए आप. 4 प्लस 4y आयोटा, मतलब इसको भी एक्सपेंड कर दिया हमने. माइनस वाई स्क्वायर, हियर इट इज 2 प्लस वाई आयोटा माइनस 4y आयोटा प्लस वाई स्क्वायर -4 -2y आयोटा. अब मजीद मल्टीप्लाई कर दीजिए इन दोनों ब्रैकेट्स को, तो 4 2 8,
plus 4y iota. Then 4 to the 8 plus 8y iota. Then 4 minus 4y square, because iota into iota is -1. After that, minus y square multiplied by 2 will be minus 2y square. And minus y cube iota minus 4 y iota plus y square minus 4 minus 2y iota. Now, after that, here कुछ जरा हम चेक करते हैं कि रियल पार्ट्स में क्या क्या चीजें हमें मिल रही हैं। तो रियल पार्ट्स में हमें क्या क्या चीजें मिल रही हैं। एक तो 4 4 और 8 ये तो कैंसिल हो गया। बाकी रियल पार्ट में रह गया -4y square -2y square, nothing else. So it will be and plus y square. So it will be -5y square. And the imaginary part will be, with y it will be 8, 4 and -4, 4y iota, 4y iota cancel out. 8y iota minus 2y iota will give us 6y iota. And with y cube, we have one thing minus y cube iota. So we can say that it will be -5y square plus 6y minus y cube iota. This is the complete simplification of part A. इमेजिनरी एंड रियल दोनों पार्ट्स को हमने अलग अलग यहां पर लिख दिया है। आगे देखते हैं क्या कहा गया। गिवन दैट रियल पार्ट ऑफ एफ ए इज -20, रियल पार्ट इज -20, फाइंड आर्ग्यूमेंट ऑफ ए। आई एम डूइंग पार्ट बी हियर। रियल पार्ट is -5y square equals to -20, y square equals to 4 and y equals to -2. Why -2? Because y is always less than 0. It is given in the question. So now what will be the value of a? a हमें क्वेश्चन में क्या गिवन दिया हुआ था? a किसके इक्वल है? 2 a 2 प्लस वाई आयोटा के इक्वल आपको a दिया हुआ था। अगर यहां पर हम 2 y की वैल्यू -2 आयोटा रखते हैं, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द आर्ग्यूमेंट, मींस एंगल व्हिच दिस complex number is making. So here it is 2, here it is -2. ये complex number यहां पर कहीं आएगा. This will be the complex number. What is this angle? If the both angle हम कैलकुलेट करते हैं किस तरीके से, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ y over x. What is y? 2. What is x? 2. So theta equals to pi/4. इस क्वाड्रेंट में है तो साथ में माइनस का साइन लग जाएगा। सो द आर्ग्यूमेंट इज -pi/4, बिकॉज आर्ग्यूमेंट हम कैलकुलेट करते हैं 0 से 180 डिग्रीज तक और फिर क्लॉकवाइज 0 से 180 डिग्रीज तक। अभी हमने क्लॉकवाइज मूवमेंट की है तो साथ में हमने माइनस का साइन लगा दिया ताकि हमें पता चल जाए कि दिस द क्वाड्रेंट इज क्वाड्रेंट नंबर 4. Hopefully this is clear. Now, question number 6 again. Sorry, it's a question of numerical solution. A simple question. Show by calculation that alpha lies between 0.5 and 1. So first we have to make the equation like fx equals to, cot को मैं लिख सकता हूं 1/tan half x -3x। पहले तो हमने इक्वेशन बना ली इक्वल टू 0 के साथ और इसको कह दिया दिस इज द फंक्शन ऑफ x। अब हम वैल्यू रखेंगे f0 जब रखा जाएगा तो बाय यूजिंग योर कैलकुलेटर द रिजल्ट विल बी 2.4 विच इज ग्रेटर देन 0। और फिर रखा जाएगा, सॉरी 0.5, नॉट 0, f 0.5 पर रिजल्ट आ रहा है 2.4।
और F1 पर रिजल्ट जो आ रहा है, दिस इज -1.1, लेस देन 0। सो वन इज पॉजिटिव, वन इज नेगेटिव। यही हमें प्रूफ करना था कि रूट लाइज बिटवीन द गिवन वैल्यूज। After that, show that if sequence of positive value given by the iterative formula this converge, then it converges to alpha। क्या मतलब, हमें इस iterative formula को what? एक मिनट पीछे करिएगा सर। Yes। Now, now in the B part, now in the B part, we have to calculate in the B part. Wait, ओके नाउ इन दिस, इसको हम फॉर्मूला को यूज करते हुए हमें कहाँ पहुंचना है, हमें अपनी इक्वेशन बनानी है जो कि क्वेश्चन में गिवन दी गई है। और क्वेश्चन में जो इक्वेशन गिवन दी गई है वो क्या है? 3x इक्वल्स टू कॉट हाफ एक्स और कॉट हाफ एक्स इक्वल्स टू 3x। ये इक्वेशन हमें बनानी है। सबस्क्रिप्ट को हटा दिया जाएगा। सो x इक्वल्स टू 1/3 टाइम्स x प्लस 4 tan इनवर्स 1/3x। अब सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करते हैं जरा। 3 क्रॉस मल्टीप्लाई, इट इज 3x। x लेफ्ट साइड पर आ जाएगा -x। 4 अपॉन में आ जाएगा इक्वल्स टू tan इनवर्स 1/3x। Now 3x minus x is 2x, 2x upon 4 is 1/2x equals to tan inverse 1/3x। tan inverse जब उस साइड पर जाएगा तो इट विल बी tan हाफ x equals to 1/3x equals to 1/3x। tan अगर अपॉन में लेकर आते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 1/cot हाफ x equals to 1/3x। 3 क्रॉस मल्टीप्लाई, कॉट क्रॉस मल्टीप्लाई। थोड़ा सा यहाँ पर हमसे कोई मिस्टेक हुई है। हियर गाइस, जो मिस्टेक हुई है हमसे वो क्या हुई है? x को हम ऊपर ले गए हैं जबकि x अपॉन में था। x अपॉन में चल रहा है। सो x विल बी हियर 3x, x will be here 3x, x will be here 3x, x will be here 3x। Now cross multiplication, 3x equals to cot हाफ एक्स, एंड दिस वी हैव टू प्रूव कि यही आइटरेटिव फॉर्मूला है जो कि हमारी गिवन इक्वेशन से मिलकर बना है। एंड आफ्टर दैट and after that in the part C we have to use the iterative formula and calculate alpha, right? First, what we have to use as x नॉट, हमसे इन्होंने कहा था कि प्रूव कीजिए कि रूट लाइज बिटवीन 0.5 एंड 1। तो सर हम, ये आइटरेटिव वाला जो चीज है ये लोकस वाली है ना? नो, इट्स न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, राइट? सो एक्स नॉट को हमने कंसिडर किया 1, क्योंकि हमारे पास रूट्स जो थे वो 0.5 से लेकर 1 के दरमियान था, तो हम कोई सी भी एक वैल्यू पिक कर सकते हैं एज एक्स नॉट। अब इस एक्स नॉट को हमने क्या करना है? अब इस एक्स नॉट को हमने क्या करना है? हमें इस एक्स नॉट को जो प्रीवियस पार्ट में फॉर्मूला दिया गया है, जो प्रीवियस पार्ट में फॉर्मूला दिया गया है उसमें रखना है एक्स नॉट को। इस फॉर्मूला में जहां जहां एक्स एन नजर आ रहा है वहां वहां हमें क्या रखना है? 1 रखना है। और जब कैलकुलेटर में 1 रखते हैं इसकी जगह पर, जरा चेक करते हैं, इट विल बी 1/3। इट विल बी 1/3 इन द ब्रैकेट। एक्स की जगह पर क्या रखना है? हमें 1 रखना है, प्लस 4 tan इनवर्स 1/3। एक्स की जगह पर हमें क्या रखना है? 1 रखना है। एंड द रिजल्ट इज, कैलकुलेटर इन रेडियंस।
calculator in radians, and the result is 0.7623. 0.7623. The first answer is 0.7623. X1, 0.7623. And after that, X2. How to calculate X2? जहां जहां आपने कैलकुलेटर में 1 रखा है, वहां पर अब आप 1 हटा दीजिए और आप क्या रख देंगे इसकी जगह पर? आंसर। हियर, यहां पर आपने 1 रखा था, इसकी जगह पर आप क्या रख देंगे? आंसर। और सिर्फ इक्वल टू का साइन प्रेस करेंगे, सो द आंसर विल बी 0.8037। 0.8037। नेक्स्ट, सिर्फ आपने कैलकुलेटर में इक्वल टू प्रेस करना है, 0.7921। 0.7921। X4, फिर इक्वल टू आपने प्रेस करना है, 0.7951। 0.7951। So therefore the answer is 0.79, or we can also call it 0.80। 2 डेसिमल प्लेसेस तक हमें अगर सेम हो जाए तो वो रिजल्ट लिख देना है। 2 डेसिमल पॉइंट तक सेम कर दिया हमने तो वो आंसर आ गया। होपफुली द क्वेश्चन इज क्लियर। इट्स नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन ऑफ न्यूमेरिकल सॉल्यूशन। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज show that question number 7 is show that dy over dx is, पिछले वाला टॉपिक आर्ट्रेशन था ना? yes, iteration. Show that dy over dx is this. कंप्लीट किया है? I don't know exactly. देख लेते हैं इसको, ठीक है। Now the equation of the curve is 3x square plus 4xy plus 3y square equals to 5। हमें इसको डिफरेंशिएट करना है और प्रूफ करना है that the dy over dx is this। So now 3x square को अगर डिफरेंशिएट किया जाएगा तो क्या हो जाएगा? 6। क्या हो जाएगा? 6x प्लस 4। एक्स वाई दो आ गए हैं तो u इंटू वी का फॉर्मूला अप्लाई होगा। u इज x, v इज y, तो u द डेरिवेटिव ऑफ v। अगर y को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या आ जाता है? साथ में y डैश। सो u v डैश प्लस v u डैश y, एंड द डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, प्लस 3y स्क्वायर क्या हो गया? 6y, और साथ में आ गया y डैश इक्वल्स टू 0। सो नाउ 6x प्लस, सर यूवी डैश प्लस क्या? u into v formula is uv dash plus vu dash। by using this formula हमने एक्सपेंड किया है इसको x y को। u is x, v is y, so here it is u, and v dash is y का डेरिवेटिव। u is x, v dash is y का डेरिवेटिव 1, साथ में y dash आ जाएगा, प्लस v क्या है हमारे पास? y, and u dash is 1। सर इसमें u अपॉन v वाला लगेगा कि uv वाला लगेगा? ओके, नाउ हियर इट इज 4x। ये बिल्कुल बेकार क्वेश्चन आपने पूछा है। 4y प्लस 6y y dash equals to 0। So now 4x y dash plus 6y y dash equals to minus 6x minus 4y, y dash common, minus 6x minus 4y upon 4x plus 6y, ऊपर से 2 कॉमन, so it will be minus साथ में 3x minus 2y over 2x plus 3y। This is dy over dx which we have to prove। अच्छा सर, ये y Now, hence find the exact coordinate of the 2 points on the curve at which the tangent is parallel to this। हमें एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करना है जिसमें टेंजेंट पैरेलल किससे हो? इस लाइन से हो। टेंजेंट का ग्रेडियंट हम निकाल चुके हैं प्रीवियस पार्ट में, जो डिफरेंशिएटेड इक्वेशन है। दिस इज कॉल्ड द ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट। मैं ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट यहां पर लिख रहा हूं। According to the given line, what is the gradient of tangent? The gradient of tangent is
-2. And gradient of tangent, according to the previous part, it will be minus 3x plus 2y over 2x plus 3y equals to -2. हमें क्या करना है बच्चों? We have to calculate, we have to calculate the exact coordinate of the 2 points on the curve at which tangent is parallel to this. ठीक हो गया? माइनस से माइनस कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 3x plus 2y equals to 4x plus 6y. 4x minus 3x is x. This will be minus 4y. The value of x is minus 4y. कर्व की इक्वेशन हमारी क्या है? द इक्वेशन ऑफ द कर्व इज 3x² जो क्वेश्चन में आपको गिवन दी गई, 4xy प्लस 3y² इक्वल्स टू 5। इसमें जरा x की जगह पर -4y रखते हैं। 3 टाइम्स -4y होल स्क्वायर प्लस 4x -4y प्लस 3y² इक्वल्स टू 5। बाय दिस विल गेट द वैल्यू ऑफ y। यहां से y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, जरा चेक करते हैं। इट विल बी 4² is 16 and 16 multiplied by 3 is 48 y² -4 4 16 -4 4, अच्छा सॉरी, यहां पर हमें x की जगह पर रखना था ना, तो x नहीं होगा ये, दिस इज y बेसिकली। -16 y² प्लस 3y² equals to 5. By this we have 48 minus 16 plus 3 is 35 y² equals to 5, and y² equals to 1 upon 5 7 are 35, and y equals to plus minus 1 upon √7। ये तो दो y की वैल्यूज आ गई। अब x की वैल्यूज भी हम कैलकुलेट करते हैं। इफ y is 1 upon √7, then x will be -4 upon √7, and if y is -1 upon √7, then x will be 4 upon √7. These are the two coordinates which we have to, these are the two coordinates which we have to write. Now students, one correction here. फर्स्ट पार्ट के आंसर में हमने दरमियान में माइनस लिख दिया था, ये प्लस होगा क्योंकि हमने ऊपर से -2 कॉमन ले लिया। सो आफ्टर दैट what is next? Next question is question number 8 about the differential equation. क्या कहा गया? डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है हमें, y in terms of x लिखना है एट द एंड। करते हैं जनाब डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व। dy के साथ ये तमाम चीजें लेकर आ जाएंगे। क्या? 1 upon 4 plus 9y² dy equals to e power -2x -1 dx। बच्चों डिनोमिनेटर में जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, होल पावर डिनोमिनेटर की अगर 1 हो, तो देखना ये पड़ता है कि ऊपर डेरिवेटिव तो मौजूद नहीं है इसका। तो 4 + 9y² का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद नहीं है, तो लॉग में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। जब इस टाइप की पोजीशन आ जाए, फिर हमें इसको दूसरे पैटर्न से सॉल्व करना होगा। अभी आपको बताते हैं वो। 9y² प्लस 4 dy इक्वल्स टू e की पावर -2x -1 dx। अब यहां पर हम लेफ्ट साइड पर यूज करेंगे फॉर्मूला tan इनवर्स का, कि अगर 1/x² प्लस a² को इंटीग्रेट करना हो, तो द रिजल्ट विल बी 1/a tan इनवर्स x/a plus c. This is the answer. So according to this formula we have to solve this. हमें अब आप देखिए, क्या मैं इसको लिख सकता हूं 3y होल स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर। तो पता ये चला x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 3y, और y और साथ में a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2 आ गई। अब करेंगे इंटीग्रेट इन्हें।
taking integral on both the side, taking integral on both the side. So अब हम इसको लिख सकते हैं 1/a, and what is a is 2 tan inverse x over a. अच्छा, one more thing, what is that thing? इसमें एक चीज ध्यान में रखिएगा, इसमें एक चीज ध्यान में रखिएगा कि जो यहाँ पर 9y² लिखा हुआ है, इसमें जो y या x आ जाए, जो वेरिएबल आ जाए, इसका कोफिशिएंट 1 होना जरूरी है। तो बिफोर दैट वी हैव टू डू वन मोर स्टेप। और वो एक स्टेप और क्या हो जाएगा कि सबसे पहले हम कॉमन लेंगे 1/9। अगर हम कॉमन लेते हैं, सो इट विल बी y² प्लस 4/9 dy इक्वल्स टू e⁻−2x−1 dx। अब देखिएगा आप जरा, 1/9 तो साइड में रहा। अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं 1/y² प्लस 4/9 को, अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं 1/y² प्लस 4/9 को, तो क्या हो जाएगा 1/a। और a कितना है 4/9, कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर करते हैं ना। और साथ में tan इनवर्स x कितना है, x की जगह पर y लिखा हुआ है, अपॉन a कितना है 2/3। ये इसका इंटीग्रल हुआ इक्वल्स टू। अब अगर इसको इंटीग्रेट सर करते हैं, तो जो फॉर्मूला आप लगा रहे हैं, यस 1/2/3, ये यानी दोबारा थोड़ा सा समझा सकते हैं कि ए आपने 4/9 को ले लिया और बी आपने वाई को ले लिया, लेकिन एग्जैक्ट आप इसका स्क्वायर तोड़। नो, आप देखें ना, अगर हम इसके बाद भी एक और स्टेप करते हैं, हियर if we do one more step after this, so it will be 1/9 in the bracket, yeah, 1/9, and then we have to integrate what, 1 over this square plus 2/3 square dy। हमें इसको इंटीग्रेट करना है, and here it is e⁻−2x−1। so according to the formula, what is the value of x? The value of x is y, and what is the value of a? The value of a is 2/3। तो अब हम फॉर्मूला में वैल्यूज रखेंगे तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, एंड दिस इज द फाइनल रिजल्ट। होपफुली नाउ इट इज क्लियर। एंड टुवर्ड्स राइट, हाउ टू इंटीग्रेट दिस, e⁻−2x−1 डिवाइडेड बाय पावर का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में आ जाएगा -2 प्लस c। अरेंज कर दें इसको थोड़ा सा। जब इसको अरेंज किया जाएगा तो 2/3 पलट कर ऊपर आएगा, तो इट विल 1/9। हियर इट इज 3/2 tan इनवर्स 3/2 y equals to e⁻−2x−1 over -2 plus c। 3 3s सर are ये 9। प्लस इनवर्स वाले फॉर्मूले में नहीं था जो आपने ऊपर फॉर्मूला लिखा, तो प्लस सी भी तो आ रहा था दोनों नीचे। तरफ इंटीग्रेट हो रहा है, किसी भी साइड पर प्लस सी लगा सकते हैं। ओके। tan इनवर्स 3/2y तो इक्वल्स टू, सर तो इंटीग्रेट का सी और फॉर्मूले का सी अलग नहीं हो जाएगा? नहीं बेटा, वो इंटीग्रल का ही सी है बेसिकली, फॉर्मूला का कोई भी सी नहीं है। ठीक है, वो इंटीग्रेट किया है तो जो आंसर आया साथ में सी लगा दिया गया। ओके, यस सर। when y is 0 x is 1, for c when y is 0 x is 1, x की जगह 1 y की जगह 0 रखना है। तो tan इनवर्स 0, ऑल द थिंग्स टुवर्ड्स लेफ्ट आर 0, एंड इक्वल्स टू x की जगह जब 1 रखेंगे तो e की पावर -2 -1 over -2 plus c। So what is the value of c? The value of c will be 1/2 e⁻3। This is the value of c। अच्छा स्टूडेंट्स, मीटिंग
कुछ देर में आफ्टर 15 मिनट्स एंड हो जाएगी। तो अगर हमारा पेपर कंप्लीट नहीं हुआ तो मैं रीस्टार्ट कर दूंगा, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। नाउ द वैल्यू ऑफ सी इज 1/2 e⁻³ अब हम रखेंगे वैल्यू ऑफ सी को इस इक्वेशन में। सो इट विल बी 1/6 tan इनवर्स 3/2 y इक्वल्स टू ई पावर, इसको भी मैं नीचे लेकर आ रहा हूं, पॉजिटिव कर रहा हूं। सो इट विल बी 1/2 e⁻²x +1, साथ में माइनस लगा हुआ है, प्लस सी की जगह पर हम क्या लिख रहे हैं, 1/2 e⁻³ हमें y को बनाना है सब्जेक्ट। हमें क्या करना है जनाब, y को बनाना है हमें सब्जेक्ट। नाउ अब हम एक काम करते हैं, 6 को क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो इट विल बी tan इनवर्स 3/2y इक्वल्स टू, 6 को जब क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया तो मैं पॉजिटिव वाला पहले लिख रहा हूं। सो इट विल बी 3/e³ माइनस 3/e⁻²x +1। tan इनवर्स को जब राइट साइड पर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये tan में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इट विल बी tan 3/e³ माइनस 3/e⁻²x +1। एंड आफ्टर दैट y फाइनली किसके इक्वल हो गया, 2/3 tan 3/e³ माइनस 3/e⁻²x +1। This is the final value of y. Now, after this, what we have in the next part? Next part में कह रहे हैं बच्चों, state what happens to the value of y as x tends to infinite। ठीक हो गया, अगर x infinite पर पहुंच जाए तो y की वैल्यू क्या होगी, we have to calculate the value of y at that moment। देखते हैं, here part b, if x tends to infinite, जनाब x tends to infinite, x की जगह पर इंफिनिटी लिखा जाएगा। so it will be 2/3 tan 3/e³। x की जगह पर अगर यहां इनफाइनाइट लिखा जाए तो इट विल बी -3/e⁻∞ हो जाएगा, और एनीथिंग डिवाइडेड बाय इंफिनिटी इज 0। सो देयरफॉर द फाइनल आंसर इज y इक्वल्स टू 2/3 tan 3/e³। जो सेकेंड टर्म है वो किस में कन्वर्ट हो गई, वो 0 में कन्वर्ट हो गई बिकॉज ऑफ इनफाइनाइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज अबाउट द पार्शियल फ्रैक्शन। सबसे पहले हमें ये चेक करना है, जो पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है इसमें डिग्रीज चेक करनी है हमें। डिनोमिनेटर की डिग्री एक्सपेंड करवाने के बाद विल बी x³, न्यूमरेटर की डिग्री 2। तो ये जनाब प्रॉपर फ्रैक्शन है, अगर न्यूमरेटर की डिग्री कम हो, डिनोमिनेटर की ज्यादा हो, तो प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। डायरेक्टली क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने 1 + 2x लिखा, प्लस 2 - x। जब भी होल पर पावर आ जाए तो 1 बाय 1 तमाम पावर्स को लिखा जाता है। पहले मैंने 2 - x की पावर 1, फिर 2 - x की पावर 2 लिख दी है। नाउ हियर इट इज a, हियर इट इज b, हियर इट इज इन द ब्रैकेट डिग्री क्या है 1, तो हियर इट इज अ कांस्टेंट c। नाउ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 2x² + 17x - 17 इक्वल्स टू, a के साथ क्या क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 2 - x होल स्क्वायर। b के साथ क्या क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 1 + 2x 2 - x, और c के साथ क्या क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 1 + 2x। आफ्टर दैट फर्स्ट लेट 2 - x equals to 0। So what is the value of x? The value of x is 2। जब 2 रखा गया लेफ्ट साइड पर, जब 2 रखा जाएगा लेफ्ट साइड पर, तो इट विल बी 8 + 17 इक्वल्स टू 2 - x वाली तमाम टर्म 0, a और b 0 हुआ। c के साथ क्या आ गया हमारे पास, इट इज 5। Here it is 25/5, so the value of c is 5।
and after that let 1 plus 2x equals to 0. So what is the value of x? The value of x is -1/2. जब -1/2 लेफ्ट साइड पर रखा जाएगा, कैलकुलेटर से वैल्यू आप निकाल लें डायरेक्टली, सो इट विल बी -25। और यहाँ पर 1 प्लस 2x की वजह से b0 और c0, तो a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, a के साथ क्या रह जाएगा, 25/4। So the final value of a is -4, and after that we have to calculate the value of the value of b। वैल्यू ऑफ b के लिए हम स्क्वायर वाली टर्म पिक करते हैं, b इससे मल्टीप्लाई हुआ और इससे मल्टीप्लाई हुआ तो स्क्वायर डेवलप हुआ, तो क्या बना जनाब, -2b। और a जब मल्टीप्लाई होगा एक्सपेंशन के बाद इससे, तो क्या डेवलप करेगा, +ax² इक्वल्स टू, लेफ्ट साइड पर एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा हुआ है, 2। तो यहां से जनाब 2b किसके इक्वल हुआ, 2b हुआ इक्वल a-2। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b नाउ, द वैल्यू ऑफ b इज -3। सो दीज आर द वैल्यूज। अब हम जरा फाइनल आंसर अगर यहां पर लिख दें, -4/1 + 2x। सर b की सी फाइंड करने के लिए 0 डालते हैं ना? व्हाट, क्या चीज, नहीं नहीं सी नहीं फाइंड करने नहीं के नहीं लिए। नहीं नहीं नहीं, ये वो वाला सी नहीं है बेटा। ये तो सी पार्शियल फ्रैक्शन का है। आप वो सी चले गए हैं कहाँ, वाई इंटरसेप्ट पर, कि एक्स को 0 रखा जाता है, नो। यहाँ पर तो सी किसी भी तरीके से आ सकता है, जैसे कि पहले और हमने एक्स को, बी के लिए क्या होता था सर, वापस रिपीट कर सकता है? हमने क्या किया सबसे पहले, 2 - x को 0 किया। 2 - x को जब 0 किया तो सी की वैल्यू आ गई। फिर 1 + 2x को 0 किया तो किसकी वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई। जिसका डिनोमिनेटर 0 से इक्वेट किया जाता है उसकी वैल्यू डेवलप हो जाती है। 1 + 2x को 0 किया तो a आ गया। 2 - x को 0 किया, टू एक्चुअली यहाँ पर 2 - x दो जगह पर है ना, 2 - x दो जगह पर है, तो 2 - x को 0 किया तो c की वैल्यू आ गई। और फाइनली b अननोन था, वो कोफिशिएंट कंपैरिजन से हमने कैलकुलेट कर लिया, राइट। नाउ after that, the value of b is -3, 2 - x, and the value of c is 5/2 - x whole square. This is the partial fraction result. Not a difficult question, and of 5 marks. Now, what we have to integrate. Okay, we have to integrate the function. Integrate करना है function को, तो partial fraction ही use होगा। partial fraction से जो हमने ब्रेक किया हुआ है, क्योंकि इंटीग्रेशन इंडिविजुअल हर टर्म को इंटीग्रेट करना होता है। तो जरा पार्शियल फ्रैक्शन से जो हमने वर्किंग की है इसको लेकर आ गए नीचे, और अब हमें इसको करना है इंटीग्रेट। चेक करते हैं जनाब कैसे इंटीग्रेट होगा। ना, फर्स्ट हमने देखा डिनोमिनेटर में 1 + 2x है, होल पावर 1 है, तो यहां पर ln अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 2 है, ऊपर 4 लिखा हुआ है, तो हम एक काम करते हैं, अगर हम 2 ऊपर लिखते हैं, 1 + 2x, 4 को हमने ब्रेक कर दिया, -2 × 2 मिलकर क्या हो गया, 4 हो गया, तो -2 बाहर ले गए और 2 अंदर रहने दिया, ताकि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में हमें मिल जाए। आफ्टर दैट, इसमें व्हाट इज डिनोमिनेटर, 2 - x, एंड व्हाट इज इट्स डेरिवेटिव, इट इज -1, तो बाहर हमें माइनस लगाना पड़ेगा, तो माइनस के वजह से प्लस हुआ और 3 साथ में रहा, प्लस हियर 5 को बाहर लेकर आ जाएं, और 2 - x होल स्क्वायर है, तो जब पावर अदर देन 1 हो तो इसको हम न्यूमरेटर में लेकर आएंगे और सिंपल इंटीग्रेट कर देंगे। सो नाउ इट विल बी -2 ln 1 + 2x +3 ln 2 - x +5। इसको इंटीग्रेट किया जाएगा तो इट विल बी 2 - x होल पावर -2 -2 + 1 -1 डिवाइडेड बाय -1, बेस का डेरिवेटिव आएगा साथ में, इट इज -1। सो द फाइनल आंसर विल बी, इसको मैं लिख रहा हूं जनाब, ln, पॉजिटिव वाले को मैं पहले लिख रहा हूं, 3 ln 2 - x -2 ln 1 + 2x +5/2 - x। अब हमारे पास लिमिट्स दी गई हैं, एंड व्हाट आर द लिमिट्स, 0 to 1। लिमिट्स अप्लाई करेंगे 0 से 1 तक,
और फिर फाइनल आंसर हमारा डेवलप होगा। तो जनाब लिमिट अप्लाई करते हैं 1, सो इट विल बी 3 ln 1 2 माइनस 1, ln 1 तो 0 होता है, ln 1 यहां पर बचा, ये 0 हो जाएगा, -2 ln 1 + 2 + 5, दिस इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अब 0 अप्लाई किया जाएगा, सो 3 ln 2 -2 ln 1, ln 1 फिर 0 हो जाएगा यहां पर, +5/2। मजीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सो इट विल बी ln 1 इज 0, सेकेंड क्या बचा, -2 ln 3 +5, हियर इट इज -3 ln 2, सेकेंड टर्म हो गई 0, -5/2, दिस विल बी -2 ln 3 -3 ln 2 +5 -5/2, +5 - 5/2। अब आप देखिए प्रॉपर्टी क्या है लॉग की हमारे पास, माइनस को यहीं रखें अगर हम, तो ln प्रॉपर्टी क्या है लॉग की, ये पावर में चला जाता है, तो इट विल बी 9 माइनस को यहीं रखा, ln 2³ इज 8 प्लस दिस विल बी 5/2, दिस विल बी 5/2। नाउ अब आप देखिए इसको क्या वर्किंग की जा सकती है, अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूं, सो इट विल बी ln 9 + ln 8 + 5/2। सो नाउ अब ये क्या हो गया, माइनस जब दोनों पॉजिटिव के साथ हैं, जब दोनों पॉजिटिव के साथ हैं तो क्या हो जाएगा, ln 9 और 8 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इट विल बी 72 + 5/2, एंड द आंसर इज 5/2 minus ln 72। द आंसर इज 5/2 minus ln 72, विच वी हैव टू प्रूव। हमें यही प्रूफ करना था कि आंसर क्या है, 5/2 minus ln 72। So after that, question number 10, what we have in this question, in question number 10, now question number 10 is a diagram is here. We have to calculate in the first part the exact coordinate of m, exact coordinate of m हमें calculate करने हैं, मैक्सिमम पॉइंट m दिया हुआ है, m क्या है जनाब, इसका मैक्सिमम पॉइंट है, और जब भी मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट की बात होती है तो हम क्या करते हैं बच्चों, डिफ्रेंशिएट करके इक्वल टू कर देते हैं 0, और जो भी वैल्यू आती है एक्स की वो मैक्सिमम होती है या मिनिमम होती है, राइट। तो इसमें तो कह रहा है कि मैक्सिमम कोऑर्डिनेट ही आएगा तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं और 0 से इक्वेट करते हैं। अब इसमें देखें अगेन दो चीजें हैं, x + 5 √3 - 2x, तो u क्या हो गया, x + 5, u डैश क्या हो गया 1, v क्या हो गया √3 - 2x, तो v डैश क्या हो गया अपॉन ट्वाइस द क्वेश्चन 3 - 2x, और अंडर द रूट का डेरिवेटिव ऊपर, -2 कैंसिल हुआ, तो आंसर क्या बना, -1/√3 - 2x। अब बाय यूजिंग द फॉर्मूला अगेन ऑफ u × v, u × v का फॉर्मूला लगाएंगे और डिफरेंशिएट करके 0 से इक्वेट कर देंगे, मींस y डैश इक्वल्स टू 0 एंड इट विल बी u द डेरिवेटिव ऑफ v -1/√3 - 2x plus v the derivative of u, it is 1 equal to 0. By taking LCM it will be x - 5 plus 3 - 2x अपॉन वाला जो 3 - 2x था अंडर रूट का वो राइट साइड पे जाके 0 हो गया, इट विल बी -3x इक्वल्स टू -5 + 3, -5 + 3 इज -2, उधर आके 2 हुआ तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2/3 माइनस का साइन, x इज -2/3। अब हमें y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, अगर y की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है क्वेश्चन में आप रख दीजिए जहां जहां x है,
तो इट विल बी -2/3 +5 √3 -2 सिंप्लीफाई करेंगे। आप कैलकुलेटर से भी इसकी वर्किंग कर सकते हैं। फाइनल आंसर y का जो एलसीएम वगैरह लेने के बाद बन रहा है, इट विल बी 13 √39/9। दिस इज द फाइनल आंसर फॉर y। सो m के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए? -2/3 and 13 √39/9। These are the maximum coordinates for m। मजीद आगे चलते हैं। यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन, ओके, फाइंड बाय इंटीग्रेशन द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। एरिया हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। एरिया कैलकुलेट करते हैं कहां से कहां तक का? फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, बट वी डोंट हैव दीज कोऑर्डिनेट्स। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? y इक्वल टू 0। y इक्वल टू 0 मीन्स x+5 √3 - 2x equals to 0. By this, x equal to -5 and x equals to 3/2. These are the two values। x की वैल्यू -5 आई और 3/2 आ गई। हमें -5 से लेकर 3/2 तक, का एरिया कैलकुलेट करना है। चलते हैं जनाब आगे। लिमिट्स हैं हमारी -5 से लेकर 3/2 तक की, ये जहन में होना चाहिए। अब आइए आगे, सब्स्टिट्यूशन क्या दी गई है? सब्स्टिट्यूशन दी गई u इक्वल्स टू 3 - 2x। सब्स्टिट्यूशन में पहला स्टेप हम लोग क्या करते हैं? चेंज ऑफ लिमिट्स। चेंज ऑफ लिमिट्स। और हमारी लिमिट्स क्या थी जनाब? चेंज ऑफ लिमिट्स अगर हम करते हैं, x की वैल्यू थी एक -5। x, when x is -5, then the value of u will be 15। then the value of u will be 15, sorry, the value of u will be 13। and when x is 3/2, the value of u is 0। पहले चेंज ऑफ लिमिट, फिर क्या करते हैं हम लोग? फाइंडिंग dx। तो इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, du/dx इक्वल्स टू 3 - 2x। तो du किसके, dx किसके इक्वल आ गया? सॉरी सॉरी, इसको जब डिफरेंशिएट किया जाएगा तो इट विल बी 3 - 2x। को जब डिफरेंशिएट किया जाएगा तो इट विल बी -2। सो dx किसके इक्वल आ गया? du/-2। अब हम अपने क्वेश्चन में वैल्यू रखेंगे, और क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन है हमारा y इक्वल टू x+5 √3 - 2x। अब हम वैल्यूज रखेंगे इसमें। u इक्वल टू 3 - 2x। u इक्वल टू 3 - 2x। तो अगर हमें एरिया कैलकुलेट करना है तो हमने इंटीग्रेट किया इसको, वैल्यूज हम रखेंगे। x की जगह पर हम क्या रख सकते हैं? अकॉर्डिंग टू दिस, x की जगह पर हम क्या रख सकते हैं? 2x इक्वल टू u-3, सॉरी 2x इक्वल टू 3 - u एंड x इक्वल टू 3 - u/2। x की जगह हम रख सकते हैं 3 - u/2 +5 और √3 - 2x। तो किसके इक्वल है? u के इक्वल। और dx के साथ हम क्या लिख सकते हैं? du/-2। लिमिट्स कहां से कहां तक की हैं? व्हेन x इज -5 इट इज 13। व्हेन x इज 3/2 इट इज 0। लिमिट्स कहां से कहां तक की आ गई? 13 से लेकर 0 तक की। हमेशा अपर लिमिट ज्यादा होनी चाहिए, लोअर लिमिट कम होनी चाहिए। तो इसको हम जरा अरेंज कर दें। -2 अगर मैं बाहर लेकर आता हूं तो इट विल बी -1/2 हियर। लिमिट्स को अरेंज कर दें 0 से 13। अगर लिमिट को स्वैप किया जाता है तो माइनस प्रोड्यूस होगा, जिसकी वजह से ये माइनस हो गया प्लस। और अंदर अब क्या बचा? यहां पर अगर हम एलसीएम ले लें इन द फर्स्ट ब्रैकेट तो इट विल बी 3 - u +10/2।
Here it is under root u. Now मजीद आगे चल रहे हैं. हाफ 0 से लेकर 13, 3 + 10 कितना हो गया? 13 माइनस यू अपॉन 2 अंडर रूट यू. ये वाला अपॉन 2 भी बाहर ले जाएंगे, सो इट विल बी 1/4 और मल्टीप्लाई करवा दें. सो 0 से लेकर 13, इट विल बी 13 अंडर रूट यू माइनस यू पावर 1 + हाफ यू पावर 3/2 डी यू. मजीद आगे चलिए, इंटीग्रेट करना स्टार्ट करते हैं. सो इट विल बी 1/4, 13 ऐसे ही रहा. u की पावर हाफ + 1 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 विल गिव अस 2/3 माइनस u की पावर 3/2 इज 3/2 + 1 इज 5/2 डिवाइडेड बाय 5/2 इज 2/5. लिमिट्स कहां से कहां तक? 0 से लेकर 13 तक. अब हम लिमिट्स करेंगे अप्लाई. पहले इसको थोड़ा सा मजीद वर्किंग कर लें. इट विल बी 13 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 26/3 u की पावर 3/2 माइनस 2/5 u की पावर 5/2. लिमिट्स 0 से लेकर 13 तक. अब इन पर करेंगे हम अप्लाई लिमिट्स. लिमिट्स इन पर अप्लाई करेंगे. इसको मैं नीचे कॉपी कर रहा हूं. नीचे देयर इज नो स्पेस हियर. सो हम लिमिट्स अप्लाई कर रहे हैं जनाब. सो इट विल बी 1/4 अपर लिमिट 13 अप्लाई करेंगे तो 26/3 13 की पावर 3/2 माइनस 2/5 13 की पावर 5/2. अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. लोअर लिमिट तो 0 है तो हर जगह 0 आ जाएगा, तो वो तो लिखने की नीड नहीं है. वो तो लिखने की नीड नहीं है यहां से. अब इसके बाद कैलकुलेटर से सॉल्व करें, सिंप्लीफाई करें, हमें बस फाइनल आंसर, हमें सिर्फ इसका फाइनल आंसर लिखना है. तो मैं डायरेक्टली कैलकुलेटर से सॉल्व करके फाइनल आंसर लिख रहा हूँ. एंड द फाइनल आंसर इज, फाइनल आंसर विल बी 169/15 √30. दिस विल बी द फाइनल रिजल्ट. सिंप्लीफाई करने के बाद ये रिजल्ट आ रहा है. और देखिएगा हमें रिजल्ट में क्या लिखना था. इन्होंने कहा था गिविंग योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ a/√13. हमारा आंसर भी √13 की फॉर्म में आ रहा है. तो देयरफॉर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? द वैल्यू ऑफ a फाइनली इज 169/50. होपफुली दिस क्वेश्चन ऑफ इंटीग्रेशन इज ऑल्सो क्लियर. मजीद आगे चलते हैं जनाब. क्वेश्चन नंबर 11 इज द क्वेश्चन ऑफ वेक्टर्स. क्या कहा गया जनाब इस क्वेश्चन में? आपसे कहा गया द पॉइंट ए एंड बी हैव पोजीशन वेक्टर्स गिवन. द लाइन L has the equation this. Show that L does not intersect the line passing AB. तो लाइन AB के लिए सबसे पहले तो मैं AB का डायरेक्शन वेक्टर निकालूं तो इट विल बी OB माइनस OA. व्हाट इज OB? OB इज 2 minus 1 1. OA is 1 2 minus 2. So 2 minus 1 is 1. Here it is -3 and here it is 3. ये डायरेक्शन वेक्टर आ गया. Therefore लाइन AB की इक्वेशन क्या बनकर आ गई? लाइन AB की इक्वेशन बनकर आ गई any fixed point. So 1 2 -2 प्लस लैम्डा टाइम्स डायरेक्शन वेक्टर 1 -3 3. ये लाइन AB की इक्वेशन. और दूसरी लाइन की इक्वेशन क्या है? R equals to 1 -1 3 प्लस म्यू टाइम्स 2 -3 4. ये दूसरी इक्वेशन. इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है और हमें ये प्रूफ करना है. और हमें ये प्रूफ करना है कि शो दैट लाइन डज नॉट इंटरसेक्ट. दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रही. तो पहली इक्वेशन बनाएंगे x = x की. फ्रॉम लाइन ए बी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? इट विल बी 1 + लैम्डा इक्वल्स टू from second equation it will be 1 + 2 mu. Now, so lambda equals to 2 mu. This is the first equation. Second, y equals to y. So 2 minus 3 lambda equals to -1 -3 mu. So this one will be
3 म्यू को मैं सेट पर लेकर आ रहा हूं, 3 म्यू माइनस 3 लैम्डा इक्वल टू -3। अगर 3 से डिवाइड कर दें इक्वेशन को तो इट विल बी म्यू माइनस लैम्डा इक्वल टू -3। लैम्डा की वैल्यू 2 म्यू है, लैम्डा की जगह रखते हैं -2 म्यू इक्वल -1 होगा, -3 नहीं होगा। -1 -2 -1 -2 इज, yes, 3 sorry, कॉमन। exactly, sorry. Here it is -1. Here it is -1. So now, this is -1 and mu -2 mu. So the value of mu is 1. If the value of mu is 1, then the value of lambda is 2. And after that, z equals to z. So -2 plus 3 lambda equals to 3 plus 4 mu. इसमें अगर हम लैम्डा और म्यू की वैल्यू रखें, -2, लैम्डा की वैल्यू 2 है तो इट विल बी 6, और 3 प्लस 4, 6 माइनस 2 इज 4 इक्वल्स टू 4, 5, 6, 7, दे आर नॉट इक्वल। प्रूव हो गया दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग। अगर दोनों इक्वल हो जाते हैं तो इंटरसेक्शन आता, अगर इक्वल नहीं है तो इंटरसेक्शन नहीं है। दिस वी हैव टू प्रूव। एंड आफ्टर दैट find the position vector of the foot of the perpendicular from A to line L। पोजीशन वेक्टर A to line L। ठीक हो गया। अब आप देखिए, ये क्वेश्चन बार बार हम कर चुके, कई बार ये क्वेश्चन हम कर चुके। क्या कहा गया इस क्वेश्चन में? पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स, आपको गिवन दिए गए हैं। एंड व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स फॉर पॉइंट ए? 1, 2, -2। कहा गया कि ये लाइन से, जो लाइन एल आपको दी गई है, इससे अगर हम डिस्टेंस कैलकुलेट करें पॉइंट ए का, हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। लेट्स से दिस इज ए डैश। लाइन एल की इक्वेशन के अकॉर्डिंगली ए डैश के कोऑर्डिनेट्स बनेंगे। लाइन एल की इक्वेशन के मुताबिक ए डैश के कोऑर्डिनेट्स बनेंगे। लाइन एल की इक्वेशन है क्या? द इक्वेशन ऑफ लाइन एल इज 1 -1 3 प्लस म्यू टाइम्स 2 -3 4। अगर इनको कंबाइन कर दिया जाएगा तो ए डैश के कोऑर्डिनेट्स बनकर आ जाएंगे 1 + 2 म्यू इन टर्म्स ऑफ म्यू, -1 -3 म्यू, 3 + 4 म्यू। ये ए डैश के कोऑर्डिनेट्स बन गए। इसके लिए डायरेक्शन वेक्टर में D1 कह रहा हूं, जो लाइन का डायरेक्शन वेक्टर है 2 -3 4। हमें D2 कैलकुलेट करना है, और D2 कैलकुलेट कैसे होगा? अगर मैं कहूं ए डैश का डायरेक्शन वेक्टर कैलकुलेट करना है तो किसके इक्वल हो जाएगा? ओ ए डैश माइनस ओ ए। तो ओ ए डैश माइनस ओ ए क्या आ रहा है? 1 + 2 म्यू -1, इट विल बी 2 म्यू, -1 -3 म्यू -2, तो इट विल बी -3 म्यू, and 3 + 4 mu plus 2, it will be 5 + 4 mu। ये डायरेक्शन वेक्टर आ गया। इसको हमने कह दिया D2। हमें मालूम है 90 डिग्रीज बन रहा है यहाँ पर। सो D1 डॉट D2 इक्वल्स टू 0। D1 को D2 के साथ डॉट प्रोडक्ट जब किया जाएगा तो x × x, इट विल बी 4 म्यू। देन -3 × -3 will give us +9, -3 -3 mu will give us +9 mu। 4 × 5 is 20, and 4 × 4 is 16 mu equals to 0। 16 + 4 20, 20 + 9 29 mu equals to -29, and the value of mu is -1। म्यू की वैल्यू आपके पास -1 आ गई। अब अगर हम ए डैश में म्यू की वैल्यू रख दें तो क्या आएगी जनाब? इट विल बी -2 और 0 और 1। अब ए डैश का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लिया जाए तो इट विल बी √4 + 1 √5। दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ line to point A। Now, here is
your last part. So we have completed our paper with discussion in how much minutes. We have started at 11:05 and finished at 12:25. So 11:05, so 12:05, 60, 70, 80 minutes. 80 मिनट्स में हम लोगों ने ये सॉल्व किया पेपर। अब आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू solve paper of mechanics. So this is all about today's class. Inshallah. See you inshallah in the next class. Allah Hafiz.